Okay. Silent children once again. I hope you all are fit and fine. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Uh, let me see whether it. Ha, Pujit, do you want to say something? Your mic is on. No, ma'am. Okay. Let's see whether it is working or not. अच्छा, let me on my video. तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी. It's still working. अभी भी ये आ नहीं पा रहा है. इसको प्ले करना पड़ेगा. चलो ठीक है, देखते हैं. आ नहीं रहा है ये टाटा क्लास एज में. नहीं तो टाटा क्लास के थ्रू कंस्ट्रक्शन बहुत इजीली बताया जा सकता है. चलो, जस्ट गिव मी 1 minute. I'll share my screen as a lab. You people just be ready with your geometry box and every required material for construction. ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन 11.2 है ना? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Let me see whether I can find any other video or not. हाँ, आवाज लेट्स सी. इसमें इन वीडियोस में अच्छे से दिखेगा क्या तुम्हें? जस्ट लेट मी चेक बेटा कि हमारा इंस्ट्रक्शन तो था. एनसीईआरटी आवाज. Have you constructed whatever triangle we discussed in our previous class? Yes or no? Ma'am, your voice is breaking. My voice is breaking. Okay, let's see. Ma'am, your voice is breaking. अच्छा. Let's wait. I am asking, did you constructed that question which we have discussed yesterday, or means in our last class, whatever we have discussed, did you see it? Did you constructed it? Am I audible now, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, it is still breaking. ठीक है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है. अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. अभी देखते हैं. आई एम ट्राइंग एट माय लेवल बेस्ट, वॉट एवर आई कैन डू. मैं एक ये टाटा क्लास एज को तो बंद कर देती हूँ यहाँ पे. No, ma'am, your voice is clear, but there is some background sound is coming. Okay. Background sound is coming. Okay, I'll try to make it because my fan is also off. Yes, beta. Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो ठीक है.
अभी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझ लो. Let me see. I am trying to find the video in which you will be more comfortable. तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा जिसमें that's why taking time, क्योंकि मैंने जो निकाल के रखा था. Yes, I am presenting my screen. I was thinking कि I'll show it through Tata Classes, पर वो Tata Classes को मैं आधे घंटे पहले से मैंने उसको ओपन करके रखा. अभी तक वीडियो उसका ऑन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं है, उसको हम बंद कर देते हैं. Okay. Is my screen visible? My screen is visible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Is it visible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's see whether it. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी. एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है. आवाज भी क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. हाँ. अब देखो बेटा, it is second question of your exercise. First question already we have discussed, मतलब उस टाइप. Ma'am, your voice is not clear. Your voice is breaking. Ma'am, your मैम voice आपकी is वॉइस cracking. नहीं आ रही है. Okay. Just let me. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, हाँ बेटा बोलो. थोड़ा सा नेटवर्क. ma'am, your voice is not clear.
Sairam beta, am I audible now? Yes, I am in the meeting beta. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay. Okay, I am sharing my screen. Ma'am, your voice is breaking. बेटा अभी थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, तुम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं वीडियो ऑन करूंगी, उसकी आवाज Ma'am, अच्छे से sorry ma'am, but what are you saying? I'm not able to understand. It's very destructive. Ma'am, but I am getting it clear. हाँ, जस्ट वेट फॉर इट, है ना। थोड़ा सा तुम लोग वेट करो, क्योंकि इशू की वजह से दिक्कत होती है। अभी में करके दिक्कत नहीं आएगी। अब लेट्स वॉच द वीडियो एंड देन लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू लिसन द वीडियो और नॉट। ठीक है, किसी एक को तो आवाज क्लियर आ रही होगी। Ma'am, your voice is breaking. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, और जो आपने प्रेजेंट किया है स्क्रीन, उस पे सिर्फ आपका वो ईमेल आईडी की फोटो आ रही है। Ma'am, but in my screen it is visible. Okay. So somewhere network issue थोड़ा सा कॉपरेट कर अंडरस्टैंड कोशिश करो। एंड आई एम प्लेइंग वीडियो की आवाज क्यों आ रहा है? In which this is equal to 8 centimeter. इस 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंगल B is equal to 45 डिग्री होना चाहिए, एंड आ रही है अभी वीडियो की आवाज आ रही है? No, ma'am, clear नहीं आ रही. Ma'am, your voice is also breaking. Yes, मैम आज गेल में नेट बहुत स्लो है। क्या स्लो है? Ma'am, today the network is so slow. मैम आज Network. गेल में मैम नेटवर्क बहुत ही इशू हो रहा है मैम, किसी की क्लास नहीं चल पा रही है। हाँ यस, मॉर्निंग सेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो इसीलिए ये दिक्कत अभी यहाँ भी हो रही है। क्योंकि ना आई हैव चेंज माय डिवाइस 2 टाइम्स, मैंने दोनों फोन से अलग अलग करके देख लिया। मैंने जियो का भी ट्राई कर लिया, आइडिया का भी ट्राई कर लिया, तो समवेयर नेटवर्क, लेकिन आप ध्यान दो 11 कौन ये हुए हैं, इसमें सब आ जाता है कि कौन बच्चे कब तक मीटिंग में नहीं। यस, एम आई ऑडिबल? yes, ma'am. ठीक है, आप देखो बेटा वीडियो, डिफरेंस ऑफ टू साइड। अभी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Now it's मैम पर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। अभी मैंने की नहीं है बेटा स्क्रीन प्रेजेंट, पहले मैंने सोचा मेरी आवाज तो क्लियर हो जाए, मैं ऑडिबल तो हो जाऊं, तब स्क्रीन प्रेजेंट करूं, है ना। अभी मैंने स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं की है। मैम आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ओके। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। यस, maybe that class video is not playing, इसीलिए हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से वो वीडियो चल नहीं रहा था। ओके, मैम अब वापस आपकी आवाज कटने लग गई। जैसे स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है तो तुम देखो, ma'am, ये आवाज वीडियो देखो बेटा, आई एम प्लेइंग इट, ध्यान से सुनो। 3.5 यानी AB और AC का मैम आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो AB शेयर द स्क्रीन। एक काम, शेयर करो बेटा, शेयर द स्क्रीन।
राजवन तुम स्क्रीन शेयर कर सकते यस मैम। देखो जैसे यस ही मैम। मैं स्टॉप कर रही हूँ वैसे ही मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? यस मैम। हाँ तो दैट्स व्हाई देयर मे बी प्रॉब्लम। हाँ अभी तो बेटा मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किया है ना, तो हो सकता है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन का जो है तुम्हारी तरह का एग्जाम्पल गिवन है, मैं बुक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट 1 मिनट रुको, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। जस्ट वेट। हाँ बेटा बोलो मोनिका, क्या बोल रही हो? एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। Yes, ma'am. ओहो मैंने वीडियो तो ऑफ ही कर दिया आपने। मैं इट इज यू आर प्रेजेंटिंग, अभी आ रहा है? विजिबल है? Ma'am, your voice is still not clear. हाँ हाँ, ये समझ में आ गई बेटा प्रॉब्लम कि स्क्रीन शेयर करने से वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ओके राजवर्धन, नाउ यू शेयर द बुक। मैम आई एम नॉट अ बुक टुडे। क्या नहीं है? चलो who else can share? Pujit, can you share the book on screen? Yes, ma'am. हाँ okay, share your book then I will explain. Yes, ma'am. अब मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? Yes, ma'am. हाँ क्योंकि ना बेटा मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी ना, तो अभी आवाज आ रही है। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है गेल में, पूरे सभी मॉर्निंग क्लासेस में भी आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। राजवर्धन माइक ऑफ करो। पुजित इज शेयरिंग हिज स्क्रीन। वो बेटा ध्यान से सुनना, जो जो मैं बोलती जाऊंगी वैसा तुम लोग उसमें नोटबुक में रफली करते जाना, ताकि तुमको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। Ma'am, is the screen sharing? यस यस इट इज विजिबल बेटा, अभी सही से आ रही थी। हाँ दिख रहा है ये। इसमें तुम एक्सरसाइज 11.2 के पहले जो गिवन है बुक में वो वाला पार्ट लेके आओ। दैट पेज शुड बी शेयर। बेस एंगल सम टू रुको, टू कंस्ट्रक्ट नहीं पेरीमीटर नहीं बेटा, इससे पहले पेरीमीटर तो थर्ड एक्सरसाइज में आ जाएगा। इससे पहले वाला 11.2 से पहले वाला पार्ट। टेक आउट 11.2 से पहले वाला पार्ट। हाँ इससे पहले पहले और प्रीवियस पेज पे जाओ बेटा। इलेवन पॉइंट टू के प्रीवियस पेज पे जाओ, उससे पहले वाले पेज पे। मैम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं है और पुजित का प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, सॉरी। भी नहीं दिख रहा है। वही लग रहा है मुझे। ओके पुजित, यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन।
Ma'am, your voice is not clear. अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? राजवर्धन, एक माइक ऑफ रखो अपना। राजवर्धन, हाँ, बाकी सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। व्हेन यू कीप योर माइक ऑफ, देन ओनली इट विल बी क्लियर। Pujit, stop sharing the screen. Let's try. Let me try once again. I will join once again, है ना? मैं एक बार मीटिंग से बाहर होके फिर से ज्वाइन करती हूँ। Just wait. Am I audible, children, now? Yes, ma'am. Okay. Now I will try to share my screen. Is it coming? आ रहा है बेटा अभी? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। देखो, अब मैं भी बुक शेयर कर लेती हूँ। बुक शेयर करके हम कर लेते हैं जिसमें ज्यादा नेट नहीं लगेगा, पीडीएफ में। वीडियो तो नहीं चल पाएगा आज, इतना नेटवर्क इशू हो रहा है। वीडियो कैन नॉट बी प्लेड। Ma'am, your voice is not clear still. Ma'am, clear है. Ma'am, your voice is breaking. Yes, ma'am. Ma'am, it is clear. हाँ बेटा बोलो। Is there any problem? Am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीलय, मेरी आवाज आ रही है? मोनिका, बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जानवी, Yes, ma'am. Yes, ma'am, आ रही है. हाँ राजवर्धन, am I audible? Yes, ma'am.
Send the message. Am I audible? ओके तो बेटा माइक ऑन जरा बोल ही दो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, यस मैम। देखो अब ना, हाँ तो इतनी देर लगती है बेटा। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर तो हो गई है, बुक शेयर कर रही हूँ। बुक इज विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ टू साइड्स व्हेन इट इज गिवन देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ये समझेंगे। सम ऑफ टू साइड्स हमने डिस्कस कर लिया था। यस Yes, ma'am. हाँ, आगे आवाज से यस और नो, तब पता चलता है मुझे Yes, बेटा, ma'am. आपको ये बेस Yes, एंगल Yes, ma'am. हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया था, सम ऑफ टू साइड्स। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली मेथड ज्यादा आसान है, तुम उसके थ्रू कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन इट्स बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर गिवन। तो बेस और बेस एंगल, अब इसमें देखो बेटा, अगर हम एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और एंगल बी बेस एंगल है, तो AB माइनस AC हो तब तो ट्रायंगल ऊपर बनता है, ये ध्यान रखना। AB माइनस AC का मतलब क्या हुआ? AB इज ग्रेटर देन AC। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके। एंड सेकेंड केस इज AC बड़ी हो AB से, तो AC माइनस AB जब गिवन होगा तब ट्रायंगल इस बेस साइड के नीचे बनेगा। ये जो बेस साइड होगी ना BC, इसके नीचे हम बेस एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दो। आप पहले हम AB इज ग्रेटर देन AC वाला पार्ट देख रहे हैं। व्हेन AB माइनस AC इज गिवन, तो क्या करते हैं? सबसे पहले फ्यू स्टेप्स आर कॉमन, जैसे हमने पहले किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द बेस लाइन। तो आप बेस लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारी एक्सरसाइज का, मैं बताती जाती हूँ और तुम क्वेश्चन उसको कंस्ट्रक्ट करते जाओ साथ साथ में। ठीक है, देखो 11.2 में ये जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. अदरवाइज इवन यू आर हैविंग Yes, बुक ma'am. आल्सो। हाँ, बुक सबके पास है, अपनी अपनी बुक में देखो। सबसे पहले ड्रॉ करो BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। किया ड्रॉ? अभी चाहे रफली ma'am. ड्रॉ कर लो। हाँ, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब B पे 45 का एंगल बना लो, अभी प्रोटेक्टर से बना लो। B पे 45 डिग्री का एंगल बना लो। नाउ अब क्या स्टेप करेंगे हम? सम ऑफ टू साइड में क्या करते थे बेटा? B को सेंटर लेके सम ऑफ टू साइड का आर्क कट करते थे। तो वैसे ही अब क्या करेंगे हम? AB माइनस AC जो डिफरेंस गिवन है, तो B को सेंटर लेके उतने डिफरेंस का आर्क कट करेंगे। क्या डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में? व्हाट इज AB माइनस AC? 3.5। सबसे पहले तुमने क्या किया? बेस साइड BC ड्रॉ की, फिर B पे 45 डिग्री का एंगल बना लिया। कर लिया इतना सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब ये जो B पे तुमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है बेटा, तो ऊपर जो रे जा रही है उस रे पे तुम क्या करोगे? AB माइनस AC कितना गिवन है? AB माइनस AC 3.5 centimeter. 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे? B को सेंटर लेके 3.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करोगे। जो एंगल वाली रे ऊपर जा रही है ना, उस पे। जिसने फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा उसको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे किया था, BC ड्रॉ की थी, एंगल B ड्रॉ किया था और AB प्लस AC जो था उसकी आर्क कट की थी एंगल पे। वैसे ही यहाँ पर भी करना है। बस अब यहाँ क्या है? डिफरेंस ऑफ टू साइड है। ठीक है, तो AB माइनस AC 3.5 है। 3.5 की रेडियस लेके आर्क कट करो B को सेंटर लेके। करी सबने आर्क कट? Yes, ma'am. उस पॉइंट Yes, को ma'am. नाम दे दो D। दे दिया? अब D को C से मिला दो। D को C से मिला दो। मिला दिया? Yes, देखो ma'am. इस तरह से Yes, ma'am.
फिगर 11.6 देख सकते हो कि हमने पहले बेस लाइन BC ड्रॉ की, फिर B पे जो एंगल गिवन है वो एंगल ड्रॉ किया, उस रे को नाम दे दिया BX। अब हम क्या करेंगे, इसमें B को सेंटर लेके जो भी डिफरेंस गिवन है, जैसे अभी 3.5 है तो 3.5 रेडियस लेके आर्क कट करेंगे इस BX पे, तो वो उस पॉइंट को नाम दे दिया D। अब DC को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। DC को ज्वाइन कर दिया, Yes, Yes, ma'am. ma'am. have you joined? हाँ। Now the next step is we will construct perpendicular bisector of DC। ये जो डीप आर्क कट की हमने, तो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो जल्दी से। DC को नाप लो कितना स्केल से, उसका मोर देन हाफ रेडियस लेके एक बार C पे रख के आर्क कट करना ऊपर, और एक बार D पे रख के आर्क कट करना। देखो यू कैन सी इन दिस फिगर 11.6 इसमें। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम खींचोगे DC का, खींचो जल्दी से। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है? DC, D फॉर दिल्ली, दिल्ली वाला DC है ना। खींचा सबने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? Yes, ma'am. यस मैम। कैसे करते हैं DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? DC जितनी भी है उसका मोर देन हाफ लेके, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका मोर देन हाफ ले लिया, जैसे 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक बार C पे कंपास रख के ऊपर आर्क कट करोगे विद द सेम रेडियस, एक आर्क नीचे कट करोगे, फिर D को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क कट करोगे। वो दोनों आर्क्स एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह क्रॉस का साइन मिलेगा तुम्हें। यहां से होते हुए तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो गई DC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बड़ा खींचना, इतना बड़ा खींचना कि ये जो तुमने एंगल वाली लाइन जा रही है ना BX, उसको वो इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे। कर रही है इंटरसेक्ट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? Yes, ma'am. एंगल वाली साइड पे कर रही है बाय इंटरसेक्ट कहीं पे? खींचा तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? Yes, ma'am. हाँ, तो वो एंगल वाली जो लाइन जा रही है, रे जा रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पे। Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दो A। और A जो है तुम्हारा D के ऊपर जाएगा, D के ऊपर की तरफ आ रहा है। Yes, ma'am. हाँ, अब इस A को C से ज्वाइन कर दो। यू शुड ज्वाइन, देखो कर्सर पे ध्यान दो, इस A को C से ज्वाइन कर दो। किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया A को ज्वाइन? हाँ, नाउ दिस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब समझ लो एक बार फिर से शॉर्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज गिवन, बेटा अगर बेस एंगल B है और AB माइनस AC गिवन है तब ट्राइंगल ऊपर बनेगा, लेकिन अगर AC माइनस AB होगा तो ट्राइंगल नीचे बनेगा। वो अभी मैं इसके बाद समझाऊंगी। तो अभी फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। व्हेन AB माइनस AC इज गिवन, तब क्या करोगे, बेस साइड ड्रॉ कर लोगे, बेस एंगल ड्रॉ कर लोगे। अब ये जो एंगल वाली रे ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे तुम B को सेंटर लेके जितना भी डिफरेंस दिया है उतनी रेडियस लेके आर्क कट करोगे। तो अभी 3.5 है सेकंड क्वेश्चन में, तो टेक B एस सेंटर एंड कट एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर ऑन दिस रे BX। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये जो एंगल वाली रे ऊपर की तरफ जाती है वो थोड़ी बड़ी बनाना, उसको तुमने BX नाम दे दिया। अब क्या किया तुमने, इस BX पे BD आर्क कट की 3.5 सेंटीमीटर की। फिर क्या करना है बेटा, वो जो पॉइंट D है यू विल ज्वाइन D टू C, D और C को मिला देंगे, तो ये DC लाइन आ गई, ये DC साइड आ गई। अब क्या करेंगे, इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए पहले DC को मेजर कर लो रूलर से, स्केल से, कि कितने सेंटीमीटर है, उसका मोर देन हाफ लेके C को सेंटर लेके ऊपर नीचे आर्क कट करो, फिर D को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस ऊपर नीचे आर्क कट करोगे। ये इस तरह से दो क्रॉस मिल जाएंगे तुमको ऊपर और नीचे। इनको मिलाते हुए स्केल से एक लाइन खींचोगे। वो जो लाइन है ये तुम्हारी जो रे BX जा रही है,
इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगी डी के ऊपर की तरफ, तो जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देना ए, और ए को सी से ज्वाइन कर दो, तो इन दिस वे यू विल गेट दिस ट्राइंगल ABC विच इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब हमें जस्टिफिकेशन करना है। समझ आ गया सबको कैसे करना है? Yes, ma'am. हाँ, ओके, सबको समझ आया क्या? सबको समझ आया? से यस और नो? हाँ यस मैम आया। Yes, ma'am. हाँ, ओके बेटा, जस्टिफिकेशन देखते हैं। लेट्स सी द जस्टिफिकेशन। अब जस्टिफिकेशन में हमको बताना पड़ेगा कि हमने ये जो AB माइनस AC इसका जो डिफरेंस है वो 3.5 के इक्वल है, ये बताते हैं। तो प्रोसीजर सेम रहेगी। देखो क्या है जस्टिफिकेशन में सबसे बड़ी बात वही, द पॉइंट A लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये जो पॉइंट A आया था, पॉइंट A कहां पर है बेटा? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC पे है। यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो A का C से डिस्टेंस और A का D से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। यस? Yes, ma'am. हाँ, तो AC इक्वल टू AD हो गया, ये एक हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? देखो एज AD इक्वल टू AC, अब हमको देखना है कि ये जो BD है, BD हमने कितना लिया था? 3.5 लिया था। तो ये जो BD है, BD को तुम क्या लिख सकते हो बेटा? इस पार्ट BD को लिख सकते हो AB माइनस AD, लिख सकते हो कि नहीं? यस मैम। ये जो BD पार्ट है इसको AB, ये पूरे AB में से इतना ऊपर वाला AD माइनस कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? BD मिल जाएगा। Ma'am, your voice is यस breaking. मैम। हाँ, BD मिल जाएगा। तो अब इसमें बेटा ये BD मिल गया, तो अब तुम इस तरह से लिखोगे BD इज इक्वल्स टू AB माइनस AD। AB माइनस AD लिखा। आप AD को किससे रिप्लेस कर सकते हो बेटा? AD को किससे रिप्लेस कर सकते हो? AC से, है ना? AC. अभी हमने लिखा ना AC से, तो ये AB माइनस AD, तो AB माइनस AD को रिप्लेस कर दिया AC से, तो BD इज इक्वल्स टू क्या आ गया? AB माइनस AC। और BD क्योंकि हमने 3.5 लिया था, तो AB माइनस AC भी कितना हो गया? 3.5। क्लियर है जस्टिफिकेशन? सिर्फ एक लाइन ये लिखनी है कि द पॉइंट A लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू AC। पूरी प्रोसीजर वैसे ही है जैसे सम ऑफ टू साइड का था, बस तुम्हें वहां पे तुमने सम ऑफ टू साइड का आर्क कट किया था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू साइड का आर्क कट किया, और पूरा जस्टिफिकेशन भी एज इट इज ही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। यस? यस मैम। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ टू साइड का एक और जो बच गया बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज पूरा प्रॉपरली नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इन दोनों की तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंस ऑफ टू साइड जो दूसरा वाला है, उसमें बस बेस एंगल नीचे की तरफ बन जाता है और कोई अलग नहीं है उसमें, पूरी उसकी भी प्रोसीजर वैसे ही है। बस बेस एंगल बी जो तुमने अभी ऊपर बनाया है वो उसमें नीचे बन जाता है। अभी तुमने बेस एंगल बी इस तरह से बनाया है ऊपर की तरफ, है ना? बी के ऊपर की तरफ बनाया है ना, अब वो बन जाएगा, फिर ये बेस साइड है ऐसे नीचे की तरफ बन जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ वी विल कंक्लूड विद शांति पार्ट, क्योंकि मैं अभी क्लास आगे तो ले लेती, लेकिन तुम लोग की दूसरी क्लास भी है, एज वेल एज अभी नेटवर्क इशू भी थोड़ा सा हो रहा है, तो अब अभी लेकिन ये मैम आई हैव अ क्वेश्चन। वो कंप्लीट कर लेना। हाँ बोलो बेटा। मैम पेपर 5 से ही मैम हम लोग का कल से स्टार्ट हो रहा है ना?
जानवी, मुझे तुम्हारे कुछ भी आवाज से क्लियर नहीं आई बेटा, कुछ समझ नहीं आया। चैट बॉक्स में लिखो क्या पूछना चाह रही हो, मुझे नहीं सुनाई आ रहा अच्छे से। मैम वो पूछ रही है कि आप वाइवा और वो प्रेजेंटेशन कब से लेंगे हमारी। रामा ने वाइवा कुछ बोला बेटा, टाइप इन चैट बॉक्स, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। चैट बॉक्स में टाइप कर दो, आई विल सी। टाइप योर क्वेश्चन। मैथ्स के टेस्ट कब स्टार्ट होंगे, वाइवा वगैरह? बस बेटा नेक्स्ट क्लास से ही हम अपनी मंडे ऑनवर्ड्स जो क्लासेस होंगी उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मंडे से आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मंडे। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और गूगल फॉर्म में आफ्टर दिवाली लूंगी। गूगल, हाँ, वर्कशीट भी भेज दूंगी नेक्स्ट वीक में ही, और गूगल फॉर्म लेकिन आफ्टर दिवाली लूंगी। तब तक तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? यस मैम। हाँ, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ वी विल कंक्लूड विथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy, and keep on studying.